देखो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन पिछली क्लास में बताया था, एक बार फिर सुन लो डेफिनेशन क्या पढ़ाया था हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने ये बोला था कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं, सेम नंबर में न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, सेम नंबर में न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इन ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इन सेंट्रल एटम बिफोर बॉन्डिंग सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स एंड फॉर्म्स same number of new orbital, this is known as hybrid orbital and this phenomena is known as hybridization. Clear है? तो central atom before bonding same energy atomic orbital intermix and forms same number of new orbital, this orbital is known as hybrid orbital and this phenomena is known as hybridization. ठीक है, ये हमने डेफिनेशन लिखी थी। अब देखो हम बात करें आगे की हाइब्रिडाइजेशन में। लिखो, हेडिंग डालो, सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, SALIENT, सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सैलिएंट फीचर्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, SALIENT, सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। राइट डाउन इन दिस। फर्स्ट पॉइंट लिखो, द ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, the orbitals taking part in hybridization, the orbitals taking part in hybridization must have only a small difference of energies. The orbital taking part in hybridization must have only a small difference of energies. The orbital taking part in hybridization must have only a small difference of energies. Next point लिखो, the hybridized orbital have, the hybridized orbital have, लिख रहे हो ना बच्चों? Yes, sir. The hybridized orbital have equivalent energies and identical shape. The hybridized orbital have equivalent energies and identical shape. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पहले लिख लो उसके बाद समझाता हूं मैं सारे पॉइंट्स। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स taking part in hybridization. The number of hybrid orbital is equal to the number of orbitals taking part in hybridization. The number of hybrid orbital is equal to the number of orbitals taking part in hybridization. Next point लिखो, both half filled as well as completely filled orbital of, both half filled as well as completely filled orbital of, both half filled as well as completely filled orbital of valence shell, both half filled as well as completely filled orbital of valence shell can take part in hybridization.
both half filled as well as completely filled orbital of valence shell can take part in hybridization. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the hybrid orbital has electron density. The hybrid orbital has electron density concentrated on the hybrid orbital has electron density concentrated on one side of nucleus, so its one lobe is relatively larger, than the other lobe. So its one lobe is relatively larger than the other lobe. उसके बाद ये डायग्राम बनाना आपको, वन लोब इज रिलेटिवली लार्जर देन द अदर लोब, उसके बाद ये डायग्राम बनाओ। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो लिख देना लार्जर लोब, और उसके कंपेयर में ये जो लोब है वो क्या होगा, स्मॉलर लोब। ठीक है, ये डायग्राम भी बनाना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म stronger bonds. The hybrid orbital can form stronger bonds as compared to the hybrid orbital can form stronger bonds as compared to the unhybridized or pure atomic orbital. The hybrid orbital can form stronger bonds as compared to the unhybridized or pure atomic orbital. नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिखो बच्चों, the hybrid orbitals are directed in space. The hybrid orbital are directed in space in some preferred direction. The hybrid orbital are directed in space in some preferred direction so as to have the hybrid orbital are directed in space in some preferred direction so as to have minimum repulsive interaction and attain maximum stability. The hybrid orbital are directed in space in some preferred direction so as to have minimum repulsive interaction and attain maximum stability. So hybridization control the geometry of molecule. Hybridization control the geometry of molecule. लिख लिया बच्चों, या कोई पॉइंट छूट रहा हो बताओ जल्दी से। सर जो सेकंड लास्ट पॉइंट था इसमें और प्योर एटॉमिक के बाद क्या आएगा? पूरा ही बोल रहा हूँ मैं, यही वाला था ना पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू अनहाइब्रिडाइज्ड और प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। और कोई पॉइंट छूटा क्या जो नहीं लिख पाए हो?
चलो देखो बच्चों, एक एक करके इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई थी, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया भी था हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और क्यों आया एक पिक्चर के अंदर, ये भी बताया था आप लोगों को। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाने से पहले उसके सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं, उतने ही नंबर में नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्लियर है। अब देखो इसी का यूज करके हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के कुछ फीचर्स दिए इन्होंने, बात करते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स दिए हाइब्रिडाइजेशन के। क्या है सुनो, पहला पोस्टुलेट है, द ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव स्मॉल डिफरेंस ऑफ एनर्जी। क्लियर है। पहली शर्त ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में अप्रोक्स सेम एनर्जी के ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, अप्रोक्स सेम एनर्जी के ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। कैसे पता चलेगा सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है, उनका शेल सेम होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट शेल का ऑर्बिटल और सेकंड शेल के ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो गलत है, या फर्स्ट शेल या थर्ड शेल के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो गलत है, उनकी एनर्जी में बहुत डिफरेंस है। अप्रोक्स सेम एनर्जी का ऑर्बिटल होने चाहिए, मतलब सेकंड शेल का एस और पी चल जाएगा, ठीक है, पर ऐसा नहीं चलेगा सेकंड का एस है और थर्ड का एस है वो आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो गलत है। क्लियर है। एनर्जी सेम होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरा, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैव इक्विवेलेंट एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। क्लियर है। अप्रोक्स सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होने चाहिए, ये तो हमने लिखा ही है, ठीक है, उनका शेप भी सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल शेप बोला है उन्होंने, ठीक है। पर याद रखो ये किसके बारे में बोला है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बारे में बोला है। जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो एक जैसे बनेंगे, आइडेंटिकल शेप के बनेंगे, और उनकी एनर्जी भी सेम होगी। बात समझ में, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो आइडेंटिकल शेप के होंगे और उनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है ये, both half filled as well as completely filled orbital of valence shell can take part in hybridization। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात समझ में है। यहाँ पर ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि आपको बॉन्ड बनाने से पहले ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट करना पड़ेगा, जैसे अपन ने वीएससी पीआरटी में किया था या वीबीटी में किया था। आपको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है। किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। आगे कह रहा है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेट ऑन वन साइड ऑफ द न्यूक्लियस। देखो जो नया ऑर्बिटल बनेगा, हाइब्रिडेशन के बाद जो नया ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के एक तरफ ज्यादा होगी और एक तरफ कम होगी, तो एक लोब बड़ा बनेगा, एक लोब छोटा बनेगा। क्लियर है। तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो कुछ इस शेप के बनेंगे। बात समझ में है, ठीक है, ये रूल है, इसको याद रखना है। आगे हम बात करें, हाइब्रिडाइजेशन से जो बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होती है एज कंपेयर टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन से जो बॉन्ड बनेंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होंगे कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो और ये मैक्सिमम स्टेबल हो जाए। जैसे अपन ने वीएससी पीआरटी में पढ़ा था, वीएससी पीआरटी में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से अरेंज करना है कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो और वो मैक्सिमम स्टेबल हो जाए। क्लियर है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी इस तरह से अरेंज करना है आपको कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो और वो मैक्सिमम स्टेबल हो, यानी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा, ज्योमेट्री। ठीक है। तो देखो क्या क्या फीचर्स हैं हाइब्रिडाइजेशन में, अप्रोक्स सेम एनर्जी के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो एक जैसे होंगे, उनकी एनर्जी भी सेम होगी। ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक डायरेक्शन में कंसंट्रेट होगी, तो एक लोब बड़ा होगा और एक लोब छोटा होगा। हाइब्रिडाइजेशन में कंप्लीटली फील्ड, हाफ फील्ड ऑर्बिटल सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। जो हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड बनेंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे एज कम्पेयर टू अनहाइब्रिडाइज्ड कंडीशन से बने हुए बॉन्ड से, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है।
और लास्ट हमने बोला था हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ज्योमेट्री डिसाइड करेगी। क्या डिसाइड करेगी? ज्योमेट्री। तो आपने यही सारे पोस्टुलेट्स लिखे हैं। इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछो। कोई डाउट है बच्चों? नो सर। नो सर। अब देखो बच्चों, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। देखो एस जो होता है वो स्फेरिकल होता है और पी जो होता है वो हमारा डंबल शेप होता है। एक एस और एक पी सेम एनर्जी के आपस में मिक्स होंगे तो आपको पता है जितने मिक्स होते हैं उतने ही नए बनते हैं। दो मिक्स हो रहे हैं ऑर्बिटल तो नए भी कितने बनेंगे? दो। नाम क्या हो जाएगा? इन्हीं के नाम पे नाम रखना है। इनका नाम हो जाएगा 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब आपको पता है एक ऑर्बिटल तो ऐसा बनता है लाइक दिस, ठीक है, जैसे हमने बनाया था। मिक्स करने के बाद पहला ऑर्बिटल ऐसा बनेगा, दूसरा भी ऐसा ही बनेगा। आपको पता है दो ऑर्बिटल को इस तरह से रखना है कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन और ये मैक्सिमम स्टेबल हो जाए। यानी दो इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में हमने देखो क्या बनाया था? लीनियर ज्योमेट्री बनाई थी, याद रखो। बीएससी में पढ़ा था ना, दो इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कितने डिस्टेंस पे रख सकते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, वो क्या हो जाएगा? लीनियर कंडीशन। तो देखो 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब देखो 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहा हूं मैं। ये एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया और बनाना कैसे है? लीनियर फॉर्म में, ठीक है। और ये हमारा दूसरा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, बनाना कैसे है? लीनियर फॉर्म में। एक sp ये हो गया, एक sp ये हो गया, बराबर। देखो वैसे ही बनाया मैंने, एक sp ऐसा, एक sp ऐसा। इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर, और एंगल हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री, ठीक है। पहले ये लिखो, उसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं। तो पहला sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होगा तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे। हर नया ऑर्बिटल ऐसा ही होगा, बात समझ में आया? ठीक है। पर इन दो नए ऑर्बिटल को अरेंज कैसे करना है कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। मिनिमम रिपल्शन तब हो सकता है जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर है। मिनिमम रिपल्शन तब हो सकता है जब वो लीनियर फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? लीनियर फॉर्म में। तो देखो ये लीनियर फॉर्म हो गया, ठीक है। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे होगा, एक sp ये रहा, एक sp ये रहा, एक sp का बड़ा लोब, ये sp का छोटा लोब, इस sp का बड़ा लोब, इस sp का छोटा लोब। क्लियर है? इसको पहले बनाओ जल्दी से। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? BeCl2। देखो देखते हैं BeCl2। ये sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल बता रहे हैं। देखो बेरिलियम होता है 4, 1s2, 2s2, 2p खाली है। बॉन्ड बनाने में हमेशा वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करेगा, अंदर वाले शेल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब देखो 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2p खाली है। कौन सी स्टेट? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन s का कहा चला गया? p में, ठीक है। ये 2s है, ये 2p है। एक s और एक p आपस में कंबाइन, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरा है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब ये सब तो भरे हुए, ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, खाली यही है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिसिपेट करेगा। 1 2 3 4 5 इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। पहले बेरिलियम बनाते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बेरिलियम जो है वो लीनियर ज्योमेट्री शो करेगा लाइक दिस, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन, ये बेरिलियम है, बेरिलियम का एक sp, ये बेरिलियम का दूसरा sp, ठीक है। अब देखो क्लोरीन की बात करें, ऐसा स्ट्रेट लाइन खींच देना ताकि डायग्राम सही बने। क्लोरीन का p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। p जो होता है वो डंबल शेप होता है। याद रखना, छोटी पत्ती नहीं बनाना। छोटी पत्ती खाली सेंट्रल एटम में बनती है जहां हाइब्रिडाइजेशन होता है। सेंट्रल एटम के अलावा कहीं पे भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो भैया ये क्लोरीन का p हो गया,
ये दूसरे क्लोरीन का पी हो गया। ठीक है, ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है? spp के बीच में और spp के बीच में। दोनों बॉन्ड एक जैसे होंगे, दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम होगी और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर। और एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 180 डिग्री। बना लो जल्दी से, ड्रॉ कर लो बच्चों इसको। सेकेंड है बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। एक s सेम एनर्जी का, दूसरा p वो भी सेम एनर्जी का, इसको px लिख देते हैं, और तीसरा p इसको हम py लिख देते हैं, सेम एनर्जी का। देखो बच्चों अगर 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नए भी कितने बनेंगे? 3। नाम क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नए भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। नाम क्या हो जाएगा? 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, आपको पता है जब भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री क्या होती है? जैसे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर पे लीनियर, 3 पर ट्राइगोनल। वेरी गुड, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे हम ट्राइगोनल प्लेनर बनाएंगे। आपको पता है हर नया ऑर्बिटल तो वैसे ही दिखेगा, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। तो पहले ट्राइगोनल यानी 120 की कंडीशन बना लेते हैं। देखो बड़ा लोब बनाया हमने, ये उसका छोटा लोब, फिर हमने बड़ा लोब बनाया, फिर ये इसका छोटा लोब, देखो फिर बड़ा लोब बनाया, फिर इसका छोटा लोब। नाम क्या हो जाएगा? ये एक sp2, ये दूसरा sp2 बच्चों, और ये है हमारा थर्ड sp2। एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, और ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनार, और एंगल 120 डिग्री। बनाओ इसको जल्दी से। एग्जाम्पल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो एग्जाम्पल है, सपोज करो BF3 की बात करते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। BCl3 भी ले सकते हो, बात एक ही है। बोरोन होता है 5, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये हमारा वैलेंस शेल। अब देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p हमारा वेकेंट है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये तो हमारा ग्राउंड स्टेट हो गया। एक्साइटेड स्टेट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर 1 2 और 3, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट। 1s और 2p, 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो नए भी कितने बनेंगे? 3। नाम क्या हो जाएगा? 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और दूसरा हमारा है फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है 9, 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन में खाली कौन सा है? p, बाकी सब तो पूरे भरे हुए हैं तो वो तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो फ्लोरीन का p पार्टिसिपेट करेगा। पहले हम sp2 कंडीशन बना देते हैं यहाँ पे, यानी हम बोरोन ड्रॉ कर रहे हैं। 3 लोब बनाने हैं, एक sp2 हो गया, दूसरा sp2, तीसरा sp2। ये बच्चों हमारा बोरोन बन गया। बोरोन का फर्स्ट sp2, सेकेंड sp2 और थर्ड sp2। फ्लोरीन का तो p ही पार्टिसिपेट करेगा तो फ्लोरीन भी बना देते हैं। एक फ्लोरीन हो गया, दूसरा फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन। तो ये BF3 का स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों।
याद रखना यहाँ छोटे लोब नहीं बनाने, इसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया, हाइब्रिडाइजेशन जो जो करता है उसी में छोटे लोब आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटे लोब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को दिखाते हैं। क्लियर है? बना लो इसको। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग डालो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp हो गया, sp2 हो गया, अब हम बात कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक s, 3 p, px, py और फाइनली pz। 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो नए भी कितने बनेंगे, 4। नाम हो जाएगा 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। आपको पता था 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जब होते हैं तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। यस, तो हमें टेट्राहेड्रल ही बनाना है, ठीक है। तो देखो टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा, देखो इसका बड़ा लोब, देन छोटा लोब, फिर बड़ा लोब, फिर छोटा लोब, फिर बड़ा लोब, फिर छोटा लोब, फिर इसके साथ छोटा लोब, ठीक है। एक sp3 आपका ये हो जाएगा, दूसरा sp3 ये थर्ड sp3 और ये फोर्थ sp3। एंगल जो होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी टेट्राहेड्रल। बना लो बच्चों इसको, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, बना लो। देखो बच्चों एग्जाम्पल लिखो इसका, इसका एग्जाम्पल है हमारा CH4। देखो कार्बन होता है 6 1s2 2s2, वैलेंस शेल यही बॉन्ड बनाएगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो ग्राउंड स्टेट हो गई। एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक s और 3p, 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, एक s और 3p, तो 4 नए बनेंगे 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे बनाने हैं हमें, ये बड़ा लोब हो गया, इसके साथ ये छोटा लोब, बड़ा लोब, छोटा लोब, ये बड़ा लोब, फिर छोटा लोब, फिर बड़ा लोब, छोटा लोब, ये बन गया हमारा कार्बन। ये देखो एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s1, तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, ये दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा और फाइनली चौथा। दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ CH4। बना लो इसको। तो बच्चों फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन लिखो, sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया। अब फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन जो हम पढ़ेंगे दिस इज कॉल्ड sp3d। फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखो लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनार, टेट्राहेड्रल, ये सारे स्ट्रक्चर 2D में है, इसलिए हम बोर्ड पे बना सकते हैं। अब जो स्ट्रक्चर आएंगे वो 3D में है, 3D बोर्ड पे बनता नहीं है, ठीक है, तो आपको भी नहीं बनाना। इसमें कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, देखो एक s, 3p और एक d मिक्स हो रहा है, ठीक है, 1 2
और 3 5 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे तो 5 नए बनेंगे, नाम हो जाएगा 5sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, एक s 3p और एक d, 5 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे तो 5 ही नए बनेंगे, नाम क्या हो जाएगा 5sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखो ये ऑर्बिटल जो है, आपको पता है जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऐसा होता है, ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पर एक एलिमेंट ए, देन बी, एक बी इधर, एक बी इधर, एक ऊपर और एक नीचे। देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऐसा बनेगा, आपको ट्राइंगल बनाना है कहाँ पर, सेंटर में, मतलब ये आपका 2D में ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल कैसे बनेगा, बड़ा लोब छोटा लोब, फिर बड़ा लोब, फिर इसका छोटा लोब, फिर इधर बड़ा लोब, फिर छोटा लोब, एक पिरामिड ऊपर, उसका बड़ा लोब, उसका छोटा नीचे आएगा, और एक पिरामिड नीचे, इसका बड़ा लोब, छोटा लोब ऊपर आएगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा किसमें, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। तो उसको हम लोब की फॉर्म में नहीं बनाते हैं, आपको ऐसे ही बनाना है, क्लियर है। इसमें आपको पता है जो ट्राइंगल के अंदर के एंगल होंगे लाइक दिस, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल के अंदर के एंगल होंगे वो 120 डिग्री, यहाँ पे ऐसा बनाना है, एक बड़ा लोब छोटा लोब इधर, बड़ा इधर छोटा इधर, बड़ा इधर छोटा इधर, ठीक है। पिरामिड ऐसे बनाओगे, ऐसे, ठीक है, एक ऊपर उसका छोटा लोब नीचे, एक नीचे उसका छोटा लोब ऊपर, क्लियर है, बात समझ में है। तो इसमें 3 एंगल जो हैं बच्चों वो 90 डिग्री के, सॉरी 120 डिग्री के, और 6 एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। 6 एंगल 90 डिग्री कैसे होंगे बता देता हूं आपको, ध्यान से देखो। ये तो आपको दिख गए 120 के, ठीक है, ये 120, ये 120, ये 120, तो 3 एंगल तो क्या हो जाएंगे 120 के। अब जो पिरामिड वाला एंगल होगा, ये पिरामिड है बच्चों, ये एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, वैसे 3 एंगल नीचे ही बनेंगे 90 90 90 के, क्लियर है। तो टोटल 6 एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। बना लो पहले इसको, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं, जल्दी बनाओ। ठीक है, एग्जांपल sp3d हाइब्रिडाइजेशन का। एग्जाम्पल इसका बच्चों PCl5, फॉस्फोरस होता है 15, 1s2, 2s2, 2p6, देखो 10 हो गए, 3s2, 3p3, ठीक है। अब देखो फर्स्ट शेल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सेकेंड शेल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बॉन्ड कौन बनाएगा, थर्ड शेल में 3d है पर वो खाली है, थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं spd, ये पार्टिसिपेट करेंगे। देखो 3s 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और 3d हमारे पास पूरा खाली है, 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। ये तो हो गया हमारा GS, एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जाएगा, एक s, देखो 3p 1 2 3 4 5, एक d, 5 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो नए भी कितने बनेंगे 5, नाम क्या हो जाएगा 5sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 5sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। देखो क्लोरीन, क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लोरीन का तो p पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि क्लोरीन 17 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, p खाली है। तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d, फॉस्फोरस इधर, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे है, ये PCl5 का स्ट्रक्चर बनेगा। बनाओ, इसमें हमें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर नहीं बनाना, हमें फुल पत्ती वाला डायग्राम नहीं बनाना है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग डालो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है, हमने sp पढ़ लिया, sp2 पढ़ लिया, sp3 पढ़ लिया, sp3d पढ़ लिया और sp3d2 बचा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है बच्चों।
चलो बाय.